morning, everyone. Good morning on a fresh Sunday morning for a wonderful topic. And yes, we all are together to learn a lot of positivity, spread positivity around with a very known positive speaker, Miss Manisha Bhatti. On behalf of all the attendees, we welcome you, ma'am. Thank Uh, you. yes, let me help you all know more about her. Manisha Bhatti is a sought after motivational speaker, trainer, and a confident coach. She is known for her authenticity, inspiration, and a fierce way of motivating the masses. She helps boost confidence, create lasting impact, and help individuals and business reach their highest potential. No wonder media house Woman TV found her work very inspiring and awarded her with certificate of outstanding achievement. Manisha ma'am began her career as an analyst in one of the topmost investment banks in the world. Working with different set of professionals gave her an understanding of the importance of skill sets, right kind of motivation, powerful trainings, mindset building, and emotional engineering that is needed for individuals to prosper in any field. This led her in founding her own firm named as Dream Hunt India. Today we have with her with us to motivate us, to help us know various techniques to stay more and more positive. As you all know, the environment going on around where we all are going to need timely motivation to stay more positive. Yes, before I move ahead, I would like to give you a few instructions that there's a question answer box on the right hand corner. Kindly paste in your questions as and how you feel you want to ask something. We will be publishing and forwarding it to the speaker as and how the session goes on. A feedback form will be sent you at the end today. Kindly fill in the link and send it to us at the earliest because your feedbacks and suggestions are really important for us. So, not taking much of your time, I would like to call upon Manisha ma'am. Thank you so much for the introduction, Shamla. Once again, to the entire team of City Pride School, thank you so much for inviting me and giving me this opportunity to interact with so many parents who are going to listen to us right now. To start with, parenting is a particular job, a particular responsibility, which will always come with a very high price. Most of the parents, including everyone who's going to listen to this, everyone, most of the parents को ऐसा लगता है that we as a parent, it is our job to just pay the fees, just take care of the child, health, wealth, इस सारी चीजों का ध्यान देना है. But on the other side, we are done. Values, etiquettes, discipline, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, ये सब बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खुद अपने आप में लाएगा. ऐसा नहीं होता. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओन हाउस. पेरेंटिंग इज समथिंग, जब बच्चा जैसे ही पैदा हो जाता है, घर में जब उसका प्रवेश हो जाता है, द वेरी फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट टीचर in a house of a child starts from his own house. So when it comes to bringing up the child, when it comes to inbuilding those etiquettes and values in a child, it is we as a parent who have to take care of the child. Let me start with the very first thing that I firmly believe, or I always promote in all of my sessions. The very first thing is that children need certain rules. Now there are different kinds of rules. First is firm rules and the second one is flexible rules. Guys, I'm coming directly to the point. I'm not going to beat around the bush. I just want everyone to note it down. पूरा सेशन ये जो एक डेढ़ घंटे का होगा, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड आप लेके जा सकते हो. बट यस, ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हो, जो आपको कल जाके काम आ सकती है. And that is where my efforts are today going to be towards how you can take up as much as possible the tricks to raise up a child. Now this is absolutely generic points that I'm going to cover up since the parents are from junior KG till 10th standard. This is something generic जो एक normal बच्चे को हमें कैसे अपब्रिंगिंग होना चाहिए, किस लेवल से हमें अपनी चेंजिंग करनी पड़ेगी as per the patterns
how we are living our life, how much are we dependent on somebody or how much are we dependent on our children to raise them up. Okay, so there are two types of rules that we have designed and we have noticed, you won't believe that दो type के rules होते हैं, एक तो firm rules होते हैं और एक flexible rules होते हैं. When I say firm rules itself says that it is strict, it is something which is to the point I want. So being a parent हमारी कहाँ पे गलती होती है, let me tell you that. सबसे ज्यादा हम बोलते हैं मैंने कहा है तो ऐसा ही होगा. Since I have told it, I want you to do it. Irrespective of what the reason is, I have told you, I am a father, I am a mother, you have to do it. तो ये जो mindset हमारा होता है ना कि strict way में बच्चों को pressurize करने का, ये backfire हमें ही होता है. बहुत सारे parents, I understand they are from IT, mothers, most of the mothers are housewife, on the other side self-employed business person है, fathers या खुद के business भी चला रहे हैं. हर किसी की responsibilities अपने अपने plate में है, but when it comes to bringing up the child and when it comes to precisely focusing on the habits of the child, it is our responsibility. We cannot just say that I am tired और मैं क्यों ध्यान दूं, ये तेरा ही काम है, तू घर पे दिन भर बैठी रहती है. It's not that way. Equally, it is the responsibility of both the parent to take care of every habit of a child. We have to analyze how is the child behaving. We have to analyze, is the child respecting us? We have to analyze, we have to take the reviews from our neighbors as well. Is my child talking in a very good way with you? Is my child obeying you? Because the very first teacher is going to start at home. It's very easy for us to start blaming to either the spouse, either the children or the school out there or the teachers out there. It's very easy, believe me. But we being a parent, teachers being a teacher, it is our responsibility to understand each other's duties and roles. Problem वहाँ पे आ रही है. बहुत सारे issues जो हमारे पास आते हैं, cases आते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा problem expectation से आता है. What we as a parent do is that we expect too much. हम कुछ ज़्यादा ही expect करने लग जाते हैं, कम से कम हमारी मेहनत से. मेहनत हम कम कर रहे हैं, but expect हम ज़्यादा कर रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. We have to balance it out. We have to make sure that जो भी चीजें हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, चाहे वो बुक्स लाना हो, चाहे कपड़े लाना हो, चाहे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशंस हो, इन सारी चीजों में बैलेंस आउट कीजिए. बहुत बार होता है बैलेंस नहीं करते हैं चीजें. जब हम बैलेंस नहीं करते हैं तो डोरी जो होती है रिस्पेक्ट की, बच्चे की और पेरेंट्स की, वो टूट जाती है. और वो जब टूट जाती है तो बहुत बाद में हमें समझ में आता है, गॉड व्हाट हैपेंड, ये ऑल ऑफ अ सडन ऐसे कैसे हो गया, मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, माय चाइल्ड वाज नॉट लाइक दिस. So it is our sole responsibility to believe in flexible rules and not firm rules. Flexible rules कैसे होते हैं कि मैंने कहा है आपको ये चीज नहीं करनी, क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है. जब हम रीजन आउट करते हैं ना बच्चे को, जब बच्चे के सामने वो रीजन क्लियर हो जाता है ना कि पापा मुझे ना क्यों बोल रहे हैं, मम्मी मुझे ना क्यों बोल रही है, a very strong reason can save the life of your child. A very strong reason attached to the rule that you're trying to pressurize them with. एक बहुत strong reason अगर आप उनको दोगे ना कि ये कारण है, इसके वजह से मैं चाहता हूं कि आप ये काम ना करें क्योंकि इसमें आपका ये नुकसान है, और आपका अगर नुकसान होगा तो हम भी बहुत ज्यादा हर्ट फील करेंगे, हमें भी बहुत ज्यादा बुरा लगेगा. आप चाहते हो कि हमारे साथ बुरा हो, क्यों? क्योंकि वो जो छोटा सा वो दिमाग बच्चे का होता है ना, वो हम बोलते हैं बहुत छोटा सा है, बहुत इनोसेंट है, बट वो फुल एक पावर पैक है. जैसे बहुत सारी चीजें वो लर्न करने को रेडी है क्योंकि काफी सारी चीजें उनको पता नहीं है. तो वो एक खाली ब्रेन है, और जब खाली ब्रेन होता है ना तो जितनी भी चीजें आप उनको दिखाओगे और करके बताओगे ना, वो सब ग्रैब करेगा. तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ पेरेंट दैट वी मोल्ड आवर चाइल्ड इन सच अ वे. तो फ्लेक्सिबल रूल्स में बिलीव कीजिए, फर्म रूल्स पे बिलीव मत कीजिए क्योंकि जितना ज्यादा हम फर्म रह के, थोड़ा बहुत ईगो दिखा के, थोड़ा बहुत गुस्सा दिखा के एज अ पेरेंट जब हम आंख निकालते हैं, जब डांटते हैं, कभी कभार थप्पड़ भी लगा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओवर हैमरिंग विल ऑल्सो मेक देयर स्किन थिक. लेट मी टेल यू दैट. व्हेन यू हैमर योर चाइल्ड, व्हेन यू स्लैप योर चाइल्ड, व्हेन यू ट्विस्ट देयर ईयर्स, व्हेन यू पिंच देम, ये सारी चीजों की अगर आपने आदत लगा दी बच्चे को, तो उस वक्त के लिए तो वो बच्चा थोड़ा बहुत सुन लेगा, बट जिस दिन उसकी स्किन थिक हो गई ना, उस दिन वो बच्चा बहुत डेंजर आपको बैकफायर करेगा. नाउ दिस इज योर चॉइस. यू हैव टू इनकलकेट फर्म रूल्स और यू हैव टू इनकलकेट फ्लेक्सिबल रूल्स इन यू.
क्योंकि बच्चा वही करता है जो बच्चा देखता है. अ चाइल्ड विल ओनली डू दैट व्हाट ही सीज. वो वही चीज करेगा. बिकॉज इट्स एज सिंपल एज दैट. बहुत ही ज्यादा ये जो कंसेप्ट है ना पेरेंटिंग का, एक्चुअल में बहुत ईजी है, बट हमने इतना उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि हमें ऐसा लगता है यार बहुत मुश्किल है आजकल बच्चों को रेज करना. आई अंडरस्टैंड सोशल मीडिया है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, नो डाउट. देयर आर समथिंग वेयर अ चाइल्ड इज बिकम वेरी स्टबर्न एज फार एज फोन मुझे चाहिए ही चाहिए. क्योंकि मैं मेरे डैड को आफ्टर ऑफिस, मैं मेरे डैड को हमेशा फोन नहीं देखता हूँ. मैं मेरे मदर को आफ्टर हाउस होल्ड स्टफ्स आइदर, ठीक है कोई कोई मदर्स काम भी करती है, उसके बाद में मेरी मम्मी को फोन के हाथ में फोन ही देखता हूँ, मैं कुछ नहीं देखता हूँ. और it is but obvious the child is going to imitate what my parent is doing. So हमारी responsibility ये है, as far as I'm coming to the point of keeping flexible and firm rules aside, अभी मैं थोड़ा सा shift हो गई towards the social media part, because when it comes to imitating, when it comes to seeing, अपने बच्चे को जब आप देखते हो कि यार बहुत ज्यादा जिद कर रहा है हर चीज में, वो सोशल मीडिया, मुझे पबजी खेलना है, मुझे ये गेम खेलना है, मुझे वो गेम खेलना है, ये नया ऐप मार्केट में आया है, इस ऐप में ये हो सकता है, वो हो सकता है. आई अंडरस्टैंड देयर आर सर्टेन गेम्स जो फैमिली को एकजुट बना भी रहे हैं, बट उसका कॉन्स ऐसे है, उस चीज के कॉन्स ऐसे है कि वो जो क्रिएटिविटी अपने बच्चे में रहती है, वो जो इमेजिनेशन पावर हमारे बच्चे में जो होता है, वो ड्रेन हो जाता है, वो इरेडिकेट हो जाता है. फोन जैसे ही बच्चा हाथ में लेता है, उसका पूरा ध्यान उस इजी वाली लाइफ में है. उसका ध्यान वो उसका ध्यान वो डिफिकल्ट, और वी कैन इट्स नॉट डिफिकल्ट, वी कैन से उसका जो ध्यान है वो इमेजिनेशन करने में, क्रिएटिविटी उसकी बढ़ाने में उसमें नहीं रहता है. वो क्या बोलता है, इजी चीजें करो, जो इजी लग रहा है मैं वही चीज करूंगा. हमें वो चीज नहीं करनी. बच्चों में थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम्स आनी भी जरूरी है, हार्डशिप्स उनको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है. बच्चा जब गिरता है, ठीक है, when a child falls, I understand, being a mother we feel bad, being a father we feel sad. Okay, आज फ्रैक्चर हो गया, आज खरोच बहुत ज्यादा आ गई, आज इंटरनल हर्ट हुआ है उसको, कुछ भी. आई अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ होता है, बट ये सारी चीजों को फील उनको करवाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. इमीडिएटली जिस तरह से हम उनको उनको क्या बोलते हैं, उनको इमीडिएटली जो हम सपोर्ट देते हैं ना, जो वो क्योर, वो जो लव अफेक्शन वो बताते हैं ना, उससे क्या होता है, बच्चा हिंदी में बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा लाड में चढ़ जाता है. क्या नो, मेरे डैड है, मेरे मॉम है, कुछ भी रहेगा तो वो करे. इस वे में क्या होता है, बच्चे की डिपेंडेंसी बढ़ जाती है. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट इज दैट वी हैव टू इंक्रीज देयर इंडिपेंडेंस, वी हैव टू इंक्रीज देयर लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस. कि वो गिरा है तो वो खुद उठेगा, वो गिरा है तो वो खुद उठ के सच बोलेगा कि मैं कैसे गिरा, मेरी क्या गलती थी, और नेक्स्ट टाइम मैं क्या नहीं करूंगा. तो इस वे में जब कोई भी ऐसी चीजें हो जाती है जिसमें बच्चा अगर फोन हाथ में ले रहा है, कहीं गिर गया हो, या किसी से झगड़ा करके आ गया हो, बहस करके आया हो, किसी पेरेंट के साथ उसका रॉन्ग किसी पेरेंट के साथ उसका डिसओबेइंग या डिसरिस्पेक्ट वाला सीन कुछ हो गया हो, क्वेश्चनिंग करो, बच्चे को क्वेश्चनिंग करो. जिस दिन हम उनको क्वेश्चन करते हैं ना कि यार ये चीज क्यों हुई, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, अच्छा तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, उसका दिमाग ओपन अप होना चालू होता है. that small brain starts opening up. and बच्चे का innocence level आपको पता है, वो हमेशा सच बोलते हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं. let me precisely focus on that. again I'm saying, बच्चे का जो दिमाग होता है बहुत ही empty brain है, वो बहुत ही empty brain है, because उसमें knowledge ज्यादा नहीं है, उसके पास information ज्यादा नहीं है. वो जो भी उसकी आंखों से देखेगा और कानों से सुनेगा, वो वही अडैप्ट करेगा. लेट मी टेल यू इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, बहुत जल्दी अडैप्ट करता है. तो हमेशा ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि मेरा बच्चा सुधर नहीं रहा है, मेरे बच्चे को सुधारना है, मेरे बच्चे को सुधारना है. वी पेरेंट्स, वी एक्चुअली डोंट नीड एनी साइकोलॉजिस्ट और एनी काउंसलर आउट देयर. वी डोंट नीड एनीबॉडी. हम क्यों ऐसे ट्रैप में नोइंगली अननोइंगली पड़ जाते हैं कि हमें किसी दूसरे को कंसल्ट करना पड़ता है कि यार मेरा बच्चा मेरे हाथ में नहीं है. ऐसा नहीं है. we are the teachers, we are the counselors, and we have given them birth. We know how our child is. We should be absolutely in and out. हमें हमारे बच्चे को जानना पड़ेगा, और ये जानना